So hello students, আজি আমি percentage chapter আৰম্ভ কৰিম। First of all, before starting the chapter, chapter start करने से पहले माने किमान important है chapter तो total maths और अपना obviously मैं number system के दिन अब start कर लूँ 5 की 6 क्लास में होता है number system में। तो अपने जी कोनो chapter है को total हम যদি ভালকে যদি দেখা যায় আমরা মোটামুটি maths और अपने more or less 22 पूरा 25 अपनी चैप्टर डिस्कस करो ओवरऑल पूरा एडीआरई असम पुलिस का पूरा सिलेबस अगर आप देखेंगे आपको 22 से 25 चैप्टर आपको मिलेगा, छोटा मोटा सब मिला के बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर मिला के 22 से 25 चैप्टर मिलेगा। सो এই 25টা কি 22টা চ্যাপ্টারত আপনি দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিব পাৰে। ওয়ান ইজ অ্যারিথমেটিক পার্ট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ অ্যাডভান্স ম্যাথস। ক্লিয়ার? তো এই যে অ্যারিথমেটিক হয় এই অ্যারিথমেটিকত মোটামুটি ধরো 12টা 13টা মান চ্যাপ্টার হবে, যেনেকে সাপোজ পার্সেন্টেজ একটা চ্যাপ্টার হয়, দেন কামস রেশিও প্রপোর্শন, দেন কামস টাইম এন্ড ওয়ার্ক, টাইম স্পিড এন্ড ডিসটেন্স, বোট এন্ড স্ট্রিম, প্রফিট এন্ড লস, ডিসকাউন্ট, মিক্সচার এলিগেশন, বহুত কিছু চ্যাপ্টার আছে। एडवांस मैथ्स तो जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, बहुत चैप्टर है। ये सब चैप्टर मिला के मैं बोल रहा हूं, अगर जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ एग्जाम में मार्क कैरी करने के लिए नहीं, ओवरऑल क्यों मैं बोल रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए ये परसेंटेज चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। रीजन भी जी स्टूडेंट और परसेंटेज মানে শতাংশ চ্যাপ্টার ক্লিয়ার নহয় এই স্টুডেন্টে আপোনাৰ প্রফিট এন্ড লস কৰিব নোৱাৰে, এই স্টুডেন্টে আপোনাৰ ডিসকাউন্ট চ্যাপ্টার কৰিব নোৱাৰে, এই স্টুডেন্টে আপোনাৰ বহুত কেটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো বহুত শর্টকাটও করা যায় টাইম স্পিড এন্ড ডিসটেন্স চ্যাপ্টার কৰিব নোৱাৰে। So this is the most fundamental chapter percentage. So percentage को ऐसे एक होता है ना कोई एबाकस वाला गेम जैसा, ठीक है ना। तो हम लोग को थोड़ा पहले कुछ कैलकुलेशन गेम जैसा करना पड़ेगा कि देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, उसके बाद उसका कंसेप्ट आएगा, ट्रिक आएगा, एवरीथिंग, ठीक है। इसका बहुत अच्छा बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परसेंटेज चैप्टर बहुत भालके जाना, बहुत भालके पढ़ा तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, नॉट ओनली फॉर एडीआरई, नॉट ओनली फॉर असम पुलिस, for any exam, be it SSC, be it railways, any exam. Percentage is the most important chapter in arithmetic. So let's start with percentage. What is percentage? Percentage কি হয়? শতাংশ। percentage মানে অসমীয়াত কোৱা হয় বা বেঙ্গলীত কোৱা হয় শতাংশ বুলি। What is percentage? percentage এর ডেফিনিশন আপনি কি করবেন? ডেফিনিশন बहुत सिंपल है, out of 100, out of 100 100 ভিতৰত কিমান, একৰ ভিতৰত কিমান। যেনেকে সাপোজ মানে এক্সাম্পল দি আপোনাক কৈ আছো, এটা স্কুলৰ ষ্টুডেন্ট তেখেতে আপোনাৰ ধৰক ক্লাস 9 পাস কৰা যে ষ্টুডেন্ট, তেখেতৰ 6টা সাবজেক্ট আছে, 6টা সাবজেক্ট, 6 সাবজেক্ট, গোটেইকেইটা সাবজেক্টৰ পৰীক্ষা হ'ল 100 মাৰ্কৰ, 100 तो टोटल मार्क कितना होगा, टोटल कितना मार्क का एग्जाम दिया वो 600 परीक्षा दिले। सपोज তেখেতে টোটাল মার্ক পালে 540, গোটেইকেইটা মার্ক ম্যাথছত পালে, সায়েন্সত পালে, বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টত ক্যালকুলেট কৰি আমি পালো যে আউট অফ 600 স্টুডেন্টে কিমান পালে 450। এটা क्वेश्चन হল परसेंटेज कितना मिला, कितना परसेंटेज मिला, कैसे निकालते हैं हम लोग? नॉर्मल तरीका, ঐকিক নিয়ম, ইউনিটারি মেথড হল যে মানুহজনে বা ল'ৰাজনে 600 আউট অফ 600 কিমান পালে 540। So যদি টোটাল মার্ক 600 then the student এ কিমান পালে 540। টোটাল মার্ক যদি 1 হয়, টোটাল মার্ক যদি 1 হয় স্টুডেন্টে কিমান পাব 540 বাই 600। এটা টোটাল মার্ক যদি 100 হয়, 100 যদি টোটাল মার্ক হয় স্টুডেন্টে কিমান পাব 540 বাই 600 ইনটু এতিয়া 0.0006 দি কাটা হল 90। आंसर हो যে কথা হল পার্সেন্টেজের ডেফিনিশন কি আছে আউট অফ 100, একৰ ভিতৰত কিমান, একৰ ভিতৰত কিমান, একৰ ভিতৰত 90, आउट ऑफ 100 कितना 90, आंसर इज 90%। 100 में कितना मिला दैट इज द सवाल। अगर आपको परसेंटेज निकालना है, आपको निकालना है 100 में कितना, 100 में जितना वही आपका परसेंटेज। क्लियर है? तो सर अगर आपको परसेंटेज निकालने देगा क्या हम लोग इतना कुछ करेंगे, इतना ज्यादा स्टेप करने की जरूरत है नहीं, इमान के स्टेप करा प्रयोजन নাই। रीजन হল
পার্সেন্টেজ ওলোৱা বেসিক তরিকা হল বেসিক সিম্পলি করা যায় যদি পার্সেন্টেজ কেনেকে ওলোৱা হয় যার যাক আপনি বেস বুলি ধৰিব মানে যাৰ লগত আপনি কম্পেয়াৰ কৰিব এটা স্টুডেন্টে 540 पाओ पारे 520 पाओ पारे 440 पाओ पारे जी इच्छा हो लेकिन सबका तो बेस तो 600 है ना सबको एकदम 600 में दिया था सबका टोटल मार्क तो 600 ही था तो जो जिसका सबका टोटल मार्क है ये टोटल मार्क में इसको ज्यादा मिला इसका परसेंटेज ज्यादा इसको कम मिला इसका परसेंटेज कम है ना ये तो होता है तो टोटल मार्क तो आपका सेम रहेगा तो आपने कंपेयर करिब टोटल मार्क ऊपर तो टोटल मार्क अपना होगा बेस तो अपना टोटल मार्क सदा तলত আহিব बेसिकली যাৰ লগত কম্পাৰিজন কৰা হ'ব যাক স্ট্যান্ডার্ড বুলি কনসিডার কৰা হ'ব এটা সদায় তলত আহিব তো 600 ইজ দা স্ট্যান্ডার্ড 600 এর ভিতৰত যোনে যিমান বেছি পাব তাৰ পার্সেন্টেজ ইমান বেছি তো আউট অফ 600 কিমান পালে 540 যেহেতু আমি পার্সেন্টেজ ওলাম এই কারণে আমি এটা 100 দিলো পার্সেন্টেজ চিহ্ন দিলাম कैलकुलेशन करेंगे 90% खत्म ठीक है परसेंटेज डेफिनेशन हो गया क्लियर ना ये ऐसा बात नहीं आप लोग नहीं जानते आप लोग शायद सबको ये चीज जानते होंगे लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं क्यों बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आगे चल के छोटा छोटा बातें आपको आगे चल के बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा तो ये आपको हो गया परसेंटेज का डेफिनेशन ओके ठीक है परसेंटेज माने ক্যালকুলেশন হবে এটা মিনিং হলো এটা ক্যালকুলেশন পার্সেন্টেজ আপনি যে যোগ পাবো যোগ আপনি পার্সেন্টেজ পাবো তাতে আপনি ডাইরেক্টলি কি করব আপনি 1/100 लिखिए सिंपल ये बहुत सिंपल बात है दो जीरो है 1 0 2 0 ये 2 जीरो बड़ा बड़ा हो गया और ये वाला जो है वो सीधा होकर 1 बन गया सिंपल परसेंटेज माने 1/100 परसेंटेज माने आउट ऑफ 100 माने 1/100 তার মানে মিনিং সাপোজ मैं अपना खोलो যে 10% আপনি কোন স্যার আপনি তো বলেন পার্সেন্টেজ মানে 1/100 তো 10 তো লিখো আছে পার্সেন্টেজ মানে কি 1/100 a0 গোল মানে 1/10 তো 10% মানে 1/10 ক্লিয়ার সিম্পল এটা শতাংশ দিস ইজ পার্সেন্টেজ এটা ভগ্নাংশ দিস ইজ ফ্র্যাকশন তো শতাংশৰ পৰা ভগ্নাংশ কনভার্ট করার কারণে আমি কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব আমি 1/100 দিয়ে मल्टीप्लाई করব परसेंटेज था परसेंटेज उठा दिए परसेंटेज की जगह 1/100 आ गया तो क्या मैं नहीं बोल सकता 1 या वैसे भी बोल सकते हैं जिसका परसेंटेज निकालना है किसका निकालना है 10 का निकालना है 10 का परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 से डिवाइड कर दिए 10 का परसेंटेज 10/100 आंसर 1/10 जिसका परसेंटेज निकालना है उसको 100 से डिवाइड कर देना है आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा और इसी तरह परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है क्लियर যদি আপনার কোয়া হয় 25% ভগ্নাংশ কনভার্ট কৰিব লাগে আপনি কি কব 25/100 25 1 25 4 1/4 परसेंटेज এর উপর ভগ্নাংশ কনভার্ট হবে क्लियर है सिंपल है ये चीज परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेना है শতাংশ ভগ্নাংশ লব লাগে ডিভাইড বাই 100 উল্টা যদি উল্টা হয় যদি আপনার 1/4 দিয়া হয় 1/4 এটা দিয়া হইছে এটা কনভার্ট করব লাগে আপনার পার্সেন্টেজত পুরো ফ্র্যাকশন শতাংশৰ পৰা ভগ্নাংশ 100 যদি হরণ করা হল ভাগ করা হল এটা উল্টাটো হবে উল্টা ভাগৰ উল্টা কি पूरा 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करना है दिस इज 25% क्लियर अगर आपको ये इसमें से ये चीज जरूर लिखिएगा ये आगे चल के आपको जरूर काम में आएगा ये वाला चीज और इसमें ये हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज आगे चल के फिर से इसका डिस्कशन होगा ठीक है आगे बढ़े बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा একটা কাম করব इससे पहले काम अपना क्या হল 10% of 500 इक्वल टू किमान होगा विदाउट यूजिंग पेन पेपर हाँ वेरी गुड कैसे निकाले
पहला ये वाला क्वेश्चन में स्टेप करेंगे, आगे में स्टेप नहीं करेंगे। कैसे समझे कि सर आप ही तो बोले थे 10 परसेंटेज को उठा देंगे तो नीचे 1/100 आएगा, ऑफ माने तो इनटू हो गया 500, A0 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 5 into 10 50। यही तो। अभी सर ये स्टेप ना करके कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे, यही तो ये तो जीरो बाद में 100 बन रहा है ना, तो बनने की जरूरत है, ऐसे रखिए, ये जीरो से ये कटेगा, ये जीरो से ये कटेगा, 5 into 10 50 आंसर। ठीक है, 10% ऑफ 20% ऑफ 50,000 इक्वल टू A0 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 5 into 20 into 10 10 into 20 200 200 into 5 1000। क्लियर? तो बहुत इजीली आपका जीरो गायब हो जाएगा। अभी 20% ऑफ 60, 20% of 60 आंसर 12। A0 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 12। क्लियर? सिमिलरली 40% of 6 आंसर 2.4 A0 A0। अब ये जीरो काटने के लिए नीचे है, लेकिन काटे किससे? कोई है तो नहीं। ये जीरो काटने के लिए कोई है? जैसे मान लीजिए 40% माने की 40% माने 40 इंटू 1/100 इंटू 6। ये जीरो तो कट गया, एक जो तो नीचे एक्स्ट्रा है, इसको काटने के लिए है? कोई है नहीं, कोई जीरो तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे? 6 4 24 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड होगा मतलब एक डेसिमल आएगा। 10 100 1000 भी डिवाइड करके डेसिमल हटा है, तो एक जीरो नीचे रह गया, एक घर के बाद डेसिमल, 4 के बाद डेसिमल। क्लियर? अगर समझ में आ गया तो बताइए। पेन पेपर समथिंग और थोड़ा सोचिए। अब वो लाइन दो दिक्कत क्या हो गया पता है? दिक्कत ये हो गया कि आप लोग को मैं ऑलरेडी ना काटने वाला सिस्टम दिखा रहा हूं, काट रहे। तो ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ब्रेन है। जब मुझे टीचर 2-4 सैंपल दिखा देंगे तो हम लोग उसी तरीके से जाने की बार बार कोशिश करूंगा, लेकिन उस तरीके से जाने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन इस बीच में आप लोग इस बीच में आप लोग एक चीज भूल गए होंगे कि 50% যদি আপনার যদি ভগ্নাংশ দেওয়া হয় 50% থেকে 50%, এটো শতাংশ যদি কনভার্ট করা হয় কিমান হবে? 50% মানে কি? হাফ। 50/100 हाफ, 1/2 हाफ। तो किसी चीज का 50% देना मतलब किसी का हाफ देना, तो आपको बेसिकली इस नंबर का आधा करना है, खत्म। आपको 0.02 काटना है। 367 समथिंग। वेरी गुड, 0.5। तो 735 অড নাম্বার, তারপরে কি নম্বর দিলে? এটা জোড়া সংখ্যা দিও। 734 দিলে ভালো ছিল, 736 দিলেও ভালো ছিল, 35 হতে দিগদার হয়ে গেল, না লাগে বাবু। 734 ও আপনি আধা করো, 734 আধা করা আরো দিগদার, ওর পর আধা করি, বাপ রে বাপ, না লাগে বাবু। 700 ও आधा करो। 700 आधा कितना? 350। बाकी कितना रहेगा? 34। उसका आधा कितना होगा? 34 का आधा कितना है? 17। तो 350 प्लस 17 367, और एक है, एक का आधा 0.5 367.5। क्लियर?
50% মানে আধা, 735 আধা 367.5। অলপ ইয়াতে অলপখিনি টাচ দিয়া হ'ল, এটা আকৌ আমি ডিসকাস কৰিম বিকজ ইয়াতে আৰু বহুতখিনি ডিটেইলছত এই টপিকটো ডিসকাশন কৰিব লগা আছে। বাট বিফোর दैट लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से समझें। 10% मैं ইয়াতে ऊपर 10% बोली লৈছো, दिस कैन बी 20%, दिस कैन बी 30%, एनीथिंग, बट इसका मुझे मतलब समझना है कि 10% इंक्रीज का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। 10% परसेंट माने কি আছে জানেন? What does percentage mean? Out of 100. तो 10% মানে out of 100 10, একৰ ভিতৰত 10। তো 10% ইনক্রিজ, ইনক্রিজ মানে বঢ়াই দিয়া। তো 100 যদি হয় আপনি 10 बढ़ाई दो, 100 যদি হয় 10 बढ़ाई दो, इसका मतलब यही है ना, श्योर। अभी क्वेश्चन मुझे बताइए, 200 है, 200, इसको आप 10% इंक्रीज करेंगे। 200 एक नंबर है, 10% इंक्रीज करना है, रिजल्ट क्या होगा? विदाउट यूजिंग पेन पेपर, 220। वेरी गुड, 220। बाकी 210 बोली काल लगी, 210। 10% इंक्रीज माने आउट ऑफ 100, माने अगर 100 होता, अगर 100 होता तो 10 रुपया बढ़ाऊंगा, लेकिन 100 तो है नहीं, है तो आपका 200। तो 100 को अगर 10 रुपया बढ़ाएंगे तो 200 को आप कितना बढ़ाएंगे? 10 का डबल 20 बढ़ाएंगे। तो 200 पहले से था, अभी 20 बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद कितना होगा? 220। क्लियर? सिमिलरली যদি আপনার দেয়া হয় 400, 20% इंक्रीज, रिजल्ट विल बी 480। 20% इंक्रीज মানে 100 যদি হয় 20 বঢ়াই দিও, 100 যদি হয় 20 বঢ়াই দিও, 200 হলে 40, 300 হলে 60, 400 হলে 80, 400 plus 80, 480 is the answer। क्लियर? अभी इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे, ठीक है? ये तो हो गया। अभी आपको मैं इसका एक तो हो गया कि दिमाग लगा के आंसर निकालना, जो कि इसके लिए कुछ फॉर्मूला नहीं चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमेशा हम लोग को कोशिश करना, जो हमेशा मैं बोलता हूँ किसी नया चैप्टर स्टार्ट करने के दौरान, कि जितना हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला कम याद रखेंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो फॉर्मूला तो जस्ट उसको हेल्प करने के, फॉर्मूला गोली मारी। कंसेप्ट क्लियर है, ऐसे आंसर निकाल पाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी, तब आपके लिए फॉर्मूला आपके पास है ऐसे। যদি আপনাকে একটা নম্বর দেওয়া হয়, যদি আপনাকে একটা নম্বর দেওয়া হয় a, নম্বরটা দেওয়া আছে a, আর এই নম্বরও আপনি x% ইনক্রিজ কৰিব। a একটা নম্বর, আর এই নম্বরক আপনি x% বঢ়াই দিব দিছে, রেজাল্ট ওলাব দিছে, রেজাল্ট आफ्टर इंक्रीजिंग, बढ़ाने के बाद रिजल्ट क्या होगा? आप बोलेंगे जो था a उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अभी इसको बढ़ा देने बोला है, बढ़ा देना माने प्लस, इंक्रीज माने प्लस, डिक्रीज माने माइनस। तो যেহেতু বঢ়াবো দিছে ইনটু 100 ইয়াতে x ইয়াতে এটা 100, এতিয়া যেহেতু বঢ়াবো দিলে নহয়, বঢ়াবো মানে প্लस, ইয়াতে प्लस 100 प्लस x by 100, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर है। अभी फिर से क्वेश्चन में आते हैं, 400 को 20% बढ़ाइए, a के जगह बैठाइए 400, 20% बढ़ाने बोला है तो 100 प्लस 20 बाय 100, 80 80 80 80, 4 इंटू 120, 480। क्लियर? तो ये है कंसेप्ट, ये है आपका फॉर्मूला। जैसे जिसको ठीक लगे, मैं सजेस्ट करूंगा ये समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला आपको एक टाइम के बाद हेल्प करना छोड़ देगा, कंसेप्ट आपका हमेशा साथ रहेगा। ओके, क्लियर ना? क्लियर আছে বুঝতে পেরে? এটা আরো একটা ইন্টারপ্রিটেশন হয়, এটা আরো একটা ইন্টারপ্রিটেশন, इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है?
এইটো যদি আগতে পাইছো না কোৱা নাই আপোনালোকে এবাৰ চাব হা 10% 10% মানে 10% মানে 10/100 a0 গ'ল মানে 1/10 है ना नहीं so 10% माने 1/10 हो गया अभी इसको समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं 10% इक्वल टू 1/10 कैसे आया आपको पता है अभी इसको ऐसे समझेंगे मान लीजिए आपको पता नहीं कि कैसे आया मान लीजिए कि आपको ये पता नहीं कि कैसे आया मैं आपको जस्ट एक रेडीमेड एक चीज लिख के दिया हूं कि 10% इक्वल टू 1/10 আপনাকে দিয়া হল আপনি এই পার্টিকুলার একটা ইকুয়েশনের পড়া আপনি কি গম পাবো আপনি এটাও গম পাবো এই যে 10 তলত থাকা যেটা নম্বর আছে নহয় এই 10 और 10% इज 1 10 का 10% 1 है फिर से 25% যদি আপনি ভগ্নাংশ কনভার্ট করে কি পাবো 25/100 কটাকটি করো কি পাবো 1/4 मतलब 4 एक नंबर है ओरिजिनल नंबर इज 4 4 को अगर आप 25% निकालेंगे 4 का 25% निकालेंगे दैट विल बी 1 अपना क्या बोल 20% माने 1/5 माने 5 आपका ओरिजिनल नंबर 5 आपका ओरिजिनल नंबर 5 को अगर आप 20% बढ़ाएं सॉरी 5 का अगर आप 20% निकालेंगे दैट विल बी 1 समझे क्या बोल रहा हूं आप एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए सब कुछ भूल जाइए अभी देखेंगे नीचे वाला नंबर इज ओरिजिनल नंबर नीचे तलत থাকা নম্বরটো ডিনোমিনেটর লব তলত থাকা নম্বরটো এটা হল অরিজিনাল নাম্বার এই নম্বৰৰ ইমান শতাংশ ইকুয়াল टू दिस এই নম্বৰৰ ইমান শতাংশ ইকুয়াল टू दिस ये नंबर का इतना परसेंटेज इक्वल टू दिस समझे अभी मैं आपको बोल रहा हूं इसको इसका फायदा देखिए क्या है मैं आपको बोल रहा हूं 225 को आप 20% बढ़ाइए 225 को 20% बढ़ाइए आंसर क्या होगा बोलिए 225 को 20% बढ़ाइए आंसर क्या होगा बोलिए 45 आई मीन 45 ऐड होगा 45 ऐड ठीक मतलब 270 कैसे के देखेंगे इसको 20% ना किमान किमान बढ़ावो লাগে 20% बढ़ावो লাগে না তো আপনি লিখব 20% 20% মানে কি 20% মানে 1/5 तो 5 और 20% किमान 1 5 का 20% कितना 1 तो मैं 5 आपका ओरिजिनल नंबर है अपना ओरिजिनल नंबर 5 এই 5 को अपने 20% बढ़ा दियो 5 आपका ओरिजिनल नंबर है 5 को आप 20% बढ़ाइए 5 और 20% माने किमान 5 और 20% किमान है 1 माने आपने 1 बढ़ा दियो 5 को 1 बढ़ाए कितना होगा 6 होगा लेकिन क्या आपको 5 को बढ़ाना है नहीं आपको तो बढ़ाना है 225 को तो 5 की जगह कौन आएगा 225 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 225 हो जाए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 हो जाए डिवाइड कीजिए 5 4 जा 20 5 5 जा 20 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो যেহেতু আপনি ইয়াতে 45 मल्टीप्लाई কইলে আপনি ইয়াতেও 45 मल्टीप्लाई करो 45 into 6 তো 45 বরাবর 90 90 3 গুণ 270 क्लियर बेसिकली पूरा क्वेश्चन का जब भी आप परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिलेगा आगे चलकर हम लोग ऐसे ऐसे प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसेंटेज শতাংশৰ ভ্যালু যদি আপনার क्वेश्चन है আপনি ভালকে পাই আছে নহয় এই পার্টিকুলার পার্সেন্টেজ ভ্যালুর পর আপনি बहुत वस्तु उलाबो पारे परसेंटेज ऐसा एक चीज है जिससे बहुत चीज आप रिलेट कर पाएंगे इससे इससे ठीक है तो अपना याते अपना 225 इज नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग 225 জায়গা 425 হবো পারে এটা ইম্পর্টেন্ট নয় ইম্পর্টেন্ট ইজ 20% বিকজ 20% মানে আমি জানো 1/5 তো এটা আমাক কোয়া হইছে ইনক্রিজ কৰিব দিছে ইনক্রিজ ডিক্রিজ না ইনক্রিজ কইছে इंक्रीज माने 20% इंक्रीज 20% माने 1/5 तो 5 का 20% 1 तो 5 को 20% इंक्रीज करना मतलब 1 इंक्रीज करना 5 को 1 इंक्रीज करेंगे मतलब 6 होगा तो 5 तो है नहीं ओरिजिनल तो मुझे बोला 225 तो 5 को बनाइए 225 तो 5 से क्या मल्टीप्लाई करने से 225 होगा इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको बोला जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर
5 इक्वल टू किमान परिमाण होगा 45, तो या तो 645 मल्टीप्लाई करो 270 का आंसर। परसेंटेज चैप्टर एक बार में जिन लोग का क्लियर नहीं हो रहा है, इसमें डरने का बात नहीं है। परसेंटेज चैप्टर एक बार में दोनों ही लोग का क्लियर होता है, जिन लोग का पहले से क्लियर है और जिन लोग को क्लियर कभी करना है नहीं। लेकिन जिन लोग को धीरे धीरे क्लियर करना है एग्जाम के लिए, उनको 1-2 क्लास लगेगा, इसमें बहुत नॉर्मल बात है, बड़ा बात नहीं है, ठीक है। परसेंटेज विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। क्लियर होता है नहीं? सिमिलरली যদি আপনার কোয়া হয় 10% ডিক্রিজ, সেম কথা 10% ডিক্রিজ 10 এটা নম্বর 10% डिक्रीज, 10% মানে 1/10, মানে 10 और 10% 1। अभी 10 को आप 10% डिक्रीज कीजिए, 10 को आप 10% से घटा दीजिए, 10 का 10% है कितना 1, मतलब -1 कीजिए 9 होगा। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, काम कीजिए, आप ना 700 को 10% घटाइए। क्वेश्चन इज 700 को 10% घटाइए। अपने को ऐसे 10 যদি হয়, নম্বর যদি 10 হয়, একটু রিডিউস -1 কমা পিছত 9 হবো। अपने को ऐसे 700, সো 10 অফ যদি 700 বনাবো লাগে, কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করিম 70, সো ইয়াতে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করিম 70, आंसर इज 630। क्लियर? 10% डिक्रीज, 10% মানে কি? 10% মানে 1/10, 10% মানে 1/10, 10/100, 10% মানে 10/100, A0 गोल 1/10, 1/10। आप सिर्फ इतना समझेंगे, आगे पीछे सब भूल जाइए, सिर्फ इतना समझिए, नीचे वाला जो नंबर है वो है आपका एक्चुअल नंबर, ओरिजिनल नंबर। इस नंबर का इतना परसेंटेज ये होगा। 10 एक नंबर है, 10 का अगर आप 10% निकालेंगे, इसका मतलब ही तो ये है ना, 10 का 10% माने 10% ऑफ 10 इक्वल टू की A0 गोल, A0 गोल 1 1 इज 1 है तो 30 तो 1, 10 का 10% 1 होगा, बात इतना ही है। अभी 10 का 10% 1 है, समझ गए? क्या करना है, इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीज कीजिए। तो 10 को 10% डिक्रीज कीजिए, 10% मानी तो 1, तो 10 को 1 डिक्रीज कीजिए 9 होगा। क्लियर? अभी मुझे 10 मेरा क्वेश्चन में तो 10 नहीं है, क्वेश्चन में आपको बोला 700 को डिक्रीज कीजिए। तो 10 যদি ডিক্রিজ করে 9 হয়, ডিক্রিজ করব লাগে 700 हो, কমাবো লাগে 700 हो, তো 10 অফ যদি 700 করব লাগে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, 10 অফ কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 700 হবে, 70 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 10 into 70 700, तो या तो आपने 70 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো 630 है। क्लियर? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अभी थोड़ा दिमाग में और ज्यादा जोर डालेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन আমরা পার্সেন্টেজ দেওয়ার ভাবে কি নিয়ম জানি কি আছে পাহৰি গলি। x/y একটা ফ্র্যাকশন, মগরে পার্সেন্টেজত দেব লাগে, কি কৰিব লাগে জানি 100 দি পূরণ কৰিব দিছে, 100 দি মাল্টিপ্লাই যদি করা হয়, দিস উইল বি কনভার্টেড ইনটু পার্সেন্টেজ। ज्यादा टाइम नहीं होगा, थोड़ी देर पहले सीखे। दिस इज द फ्रैक्शन। এই ফ্র্যাকশনক পার্সেন্টেজে লব লাগিছিল, কি দি মাল্টিপ্লাই করলো 100 দি মাল্টিপ্লাই করলো। ভগ্নাংশটা দেয়া থাকে শতাংশ লব বলে 100 দি পূরণ করা পার্সেন্টেজে পাই যাব। ক্লিয়ার? সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লাইজ হিয়ার। তো যে কোনো ভগ্নাংশ যদি শতাংশ লব লাগে 100 দি পূরণ করব, ঠিক আছে। अभी देखेंगे। फर्स्ट इज क्या 1, सिर्फ मैं 1 लिखा, क्या ये फ्रैक्शन है, यस और नो? हाँ, क्या ये फ्रैक्शन है, यस और नो? जोर से बोलिए नो। यस, बिकॉज ऊपर में लिखा है 1/1, তলত একো নাই মানে 1 আছে, দিস ফ্রैक्शन। এটা কথা হল ফ্রैक्शनক যদি লব লাগে পার্সেন্টেজ, কি কৰিব আপুনি 1/1 into 100, that is 100%। মানে 1 মানে 100%, 1 মানে 100%। সিমিলারলি 1/2 পার্সেন্টেজ লব লাগে, কি কৰিম 1/2 into 100 परसेंटेज हो गया। 100/2 করলে কিমান হবে 50%। तो बेसिकली आप गौर करके देखिए एक चीज, आपको ना सीधा सीधा इसका ऐसा भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 100 को मैं जो फ्रैक्शन दूंगा ना 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, तो बेसिकली 100 को 2 से डिवाइड करना है, 100 को 3 से डिवाइड करना है, 100 को 4 से डिवाइड करना है, 100 को 5 से डिवाइड करना है, परसेंटेज मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, आगे चल के मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा नहीं,
मैं सिर्फ लिखूंगा ये और आपको इधर वैल्यू बोलना है तुरंत, जैसे कि ये बताइए 1/3 परसेंटेज 33.33 और 33 1/3 परसेंटेज इन डेसिमल 33.33 परसेंटेज 1/4 वेरी गुड 25 परसेंटेज 100/4 कीजिए मिलेगा आपको 25 1/5 20 परसेंटेज वेरी गुड 1/6 1/6 माने 100/6 দুই দুই দিয়ে कैंसिल करो 50/3 आइए सुना 50/3 ये 3 दी क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 के बहुत पास चले जाएंगे 1/6 মই জানি কি কৈছে আপোনালোক ৰিলেট কৰি ট্ৰাই কৰক কি কৈ আছে 1/6 মানে 1/6 into 100 ऊपरत 100 तलत 6 দুই दी काटा गो तलत 3 ऊपरत 50 सब भूल जाइए 50/3 अभी है 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 के बहुत पास चले जाएंगे 3 into 16 हो गया 48 चाहिए मुझे 50 कितने के लिए चूक गया 2 रिमाइंडर आपका 2 डिवाइड आप किससे किए थे नीचे क्या था आपका डिवाइड करें 3 नीचे आपका 3 62/3%। अब एक बात देखिए 1/3 माने 0.33 ना 1/3 33 सेम আছে 1/3 माने 0.33 तो 2/3 माने 1/3 0.33 2/3 माने 66.66 so this is 16.66 1/3 double 1/3 0.33 1/3 double 2/3 तो 0.33 double 60 खत्म ठीक है 1/7 माने 100/7 7 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 के बहुत पास चले जाए 7 into 14 98 7 into 14 98 जाना था 100 दो चूक गया ऊपर में 2 नीचे में 7 72/7% 1/8 आपको ऐसे 1/1 1/2 1/3 करते करते 1/20 तक बनाएंगे और इसे बनाना नहीं है जैसे कि मैं आपको पहला क्लास में नंबर सिस्टम की क्लास में ही बोला गया था स्क्वायर 1 से 30 तक स्क्वायर 1 से 20 तक क्यूब मल्टीप्लिकेशन टेबल एटलीस्ट अप टू 20 याद रखना है साथ में उसी नोट कॉपी का पहला जो 15 पेज बोले थे रखने के लिए उसमें आपका ये पूरा चार्ट आएगा 1/1 1/2 1/3 का परसेंटेज वाला वैल्यू पूरा याद रखना मैं आपको बोलूंगा 1/7 तुरंत बोलना है 42/7% उसमें कोई ऐसा रुके थोड़ा सीलिंग में देखे ऐसा टाइम नहीं है तुरंत बोल देना है ठीक है तो 1/8 थोड़ा दिक्कत हो रहा है दिक्कत ज्यादा नहीं होना है 1/4 की मान 25 1/4 और आधा की मान 1/4 और आधा को लेके मान होगा 1/8 तो 25 को आधा को लेके मान होगा 25 का आधा 12 1/2% माने 12 1/9 100 और 9 से डिवाइड करो 1/9 माने 1/9 into 100 100 और 9 से डिवाइड करो 9 into 11 99 11 हो गया रिमाइंडर की मान 1 डिवाइड किससे किए थे इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट पता है इसका डेसिमल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज को डेसिमल में करेंगे आपको मिलेगा 11.11% क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा ये वाला वैल्यू याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट सब इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/10 10% 1/11 100 और 11 से डिवाइड करो 11 into 9 99 रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 11 इसका भी आपका डेसिमल वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट 9.09% 1/12 1/12 सिंपल 1/12 মানে 100/12 উপৰত 100 তলত 12 4 দিয়ে ডিভাইড কৰি দিও 3 উপৰত 25 25 3 দিয়ে ডিভাইড কৰক 8 1/3% মানে 8.33% 1/13 13 7 जा 91 रिमाइंडर 9 7 9/13% 7 9/13% क्लियर आगे बढ़े
तब फोटो ले लीजिए, इसका आगे बढ़ते, ठीक है। 1/13, 1/14 थोड़ा दिक्कत है सर, फिर से 14 नहीं करना है, छोड़िए इतना मेहनत नहीं करना है। ऑलरेडी आप लोग 1/7 निकाल चुके हैं, तो 1/7 का आधा क्या होगा 1/14, तो 14 2/7 का आधा कीजिए, 14 का आधा 7, 2/7 का आधा 1/7, 7 1/7%, 7 1/7%, 1/15 100/15, 100/15 5 दी काटी दियो, 6 2/3%, 1/16 6 1/4%, डेसिमल वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट 6.25%, कारण 1/4 माने तो 0.25, ठीक है सर। 1/17 17 5 से 85, रिमाइंडर 15 डिवाइडेड बाय 17%, 1/18 100/18 माने 50/9, 9 5 से 45, 5/9%, 1/19 5/19%, 1/20 लास्ट 1/20 इक्वल टू 5%। ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है, 1/1 और पूरा लो 1/20 लेके पूरा मुखस्त, बिकॉज परसेंटेज अपना परसेंटेज चैप्टर पूरा क्वेश्चन तो आठ आइबो আৰু ইয়াৰ বাহিৰত সিম্পলিফিকেশন আপুনি যদি সিম্পলিফিকেশন কোশ্চেনস কৰিব তাতে পার্সেন্টেজৰ পৰা হিউজ নাম্বার অফ কোশ্চেন সিম্পলিফিকেশনত পার্সেন্টেজ রিলেটেড কোশ্চেন থাকে, যাতে পার্সেন্টেজৰ ভ্যালু কেটা যদি আপোনাৰ মুখস্থ না থাকে, যদি আপোনাৰ সিম্পলিফিকেশন হ'ব ন হওয়াটো তো নিশ্চয়কৈ হ'ব বাৰু, বাট এটা কোশ্চেন পাওয়াতে আপনি তিনটা কোশ্চেনের टाइम देते দিব আৰু, तो आगे चल के आपका जीएस या इंग्लिश का एक दो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। एक बार सबको लिख लेंगे, वैल्यू सब लिखिए कॉपी में, हाँ एक बार वैल्यू को जस्ट एक बार देखिए, तो क्विक एक रिवीजन कीजिए, क्विक रिवीजन। देखिए फाइंड द वैल्यू, अपना दिया हो 44% ऑफ 25, यार वैल्यू लगे, फाइंड द वैल्यू 44% ऑफ 25, कितना हो गया सर? कोई दिक्कत होगा कैलकुलेशन में? कोई बात नहीं, हाँ कैसे मतलब कैलकुलेशन आप पूरा करके बता रहे हैं कि ऐसे ही देखिए, कैलकुलेशन पूरा नहीं करना होगा, देखिए इसको लॉजिक एक देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं ए परसेंटेज ऑफ बी, माने कि माने ए बाय 100 इंटू बी, माने ए बी बाय 100, यस और नो? এতিয়া শুনা সকলে এটা কাম কৰকচোন স্যার, আপনি b পার্সেন্টেজ অফ a উলাই দিয়ক, b পার্সেন্টেজ অফ a মানে b বাই 100 इनटू a, a b ऊपर गोल बाय 100, ये दोनों इक्वल हो गया, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो आपको 44% ऑफ 25 निकालने दिया है, मैं तुम्हारा 44% का वैल्यू गमे ना पाओ, गमे ना पाओ, কিন্তু মই এটো গম পাও, এই পার্সেন্টেজ মই ইয়াতে লিখিব পাৰো, মই যদি বিচাৰো এটো 25% অফ 44 লিখা যায়, बिकॉज परसेंटेज a परसेंट ऑफ b, परसेंटेज b परसेंट के साथ लग गया, बात तो एक है, बिकॉज घूम फिर के मल्टीप्लाई होगा, এটা 25% মানে আমি গম পাও 1/4 into 44 and that will be 11, clear? Answer without using pen paper.
কি বেয়া বেয়া রেজাল্ট হয়েছে না 67% of 73 33% of 73 आंसर इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, अभी करेंगे लेकिन थोड़ा इसमें गैप। किसी का बर्थडे हुआ है तो बर्थडे का केक जो है उस केक को आप गए बर्थडे में तो आपको पूरा एक केक थमा दिया गया है, जो बर्थडे वाला केक था आपको पूरा दे दिया गया, खाइए। तो आपको कितना परसेंटेज दिया गया है? याद रखेंगे, पूरा केक माने 100, पूरा माने 100। बर्थडे का केक को 5 पीस किया गया था, 5 में से आपको 1 पीस दिया गया, कितना परसेंटेज दिया गया? 20%, 1/5। बर्थडे केक को 3টা পিস করা হয়েছে, একটা পিস দেয়া হলো, কিমান পার্সেন্টেজ দেয়া হলো? 33 हो गया, खत्म। 73 या तो আছে, 73 या तो আছে, মানে কমন। তো 67 প্লাস 33%, 67% প্লাস 33% অফ কিমান 73, এই দুটো প্লাস করে অপশন কিমান হয়? 100%। 100% 73 কিমান? 73 नीचे 100% में पूरा 73 खत्म, कुछ करना ही नहीं। तो दोनों का समेशन 100, नंबर सेम है, 73। क्लियर? थोड़ा सा कष्ट हो without using pen paper, हाँ। आंसर पेन पेपर यूज भी करना है तो सिर्फ आपको 2-4 वैल्यू लिखना है, बहुत ज्यादा एकदम 2 पेज नहीं बना देना इसको। आंसर total percentage is 90.933. आंसर लगे ना, माने इधर तो वैल्यू सब अलग अलग है ना, तो आप तो परसेंटेज क्लास नहीं करेंगे हम, अभी इंडिविजुअल करेंगे। वो 1 होगा तब 100% ये होगा, 50% नंबर तो अलग अलग हो गया। 10% of 20, 0 गोल 0 गोल 0 गोल 0 गोल, 2 into 1 2। 25% माने 1/4, 48 तो 1/4 कितना? 20% 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 6 to the 33 1/3% माने 1/3। 99 और 3 से डिवाइड करो, 33। 24 26 प्लस 33, 26 और 33 59। क्लियर? बोलिए आंसर। फिर से अलग अलग कर लीजिए ना, इसका अलग से कीजिए, इसका अलग से कीजिए। 12 1/2%, 1/8। 48 और 8 की डिवाइड करो, 6 प्लस ये कहां से आ गया नहीं पता, लेकिन हम लोग को क्या ये नहीं पता था 33 1/3% মানে কি হয়? फ्रैक्शन ऑफ 1/3 66 2/3%। इट इज अपने 2 दी मल्टीप्लाई करो ऑप्शन 33 डबल 66, 1/3 डबल 2/3, और इसका डबल ये है, इसका भी डबल कर दीजिए 2/3
So this will be 2 by 3 into 33. 33 3 দিয়ে ডিভাইড করো 11 11 দুগুণে 22 ঠিক ঠিক আছে 66 2 by 3% 2 by 3 কি আসছিল এটা আপনি মাল্টিপ্লাই করে একটু লব 2 by 3 into 33 33 3 দিয়ে ভাগ দিও 11 11 দুগুণে 22 ঠিক convert this into percentage so এটা ভগ্নাঙ্ক দেয়া আছে পার্সেন্টেজ লব লাগে কি করি আমি 64 by 25 into 100 this will be 4 110 20 to double 256 256% is the correct answer 60 যি কোনো অকলখানি একটু নহয় বাৰু যি কোনো ভগ্নাংক যদি আপোনাৰ যদি কনভার্ট কৰিব দিয়ে শতাংশ আপুনি খালি ডাইৰেক্টলি কি কৰিব আপুনি 100 দি পূৰণ কৰি দিয়ক 100 দি পূৰণ কৰি দিয়ক আপোনাৰ অটোমেटिकली परसेंटेज कन्वर्ट हो जाएगा ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं क्लियर है convert this percentage into fraction এটা শতাংশ দিয়া হৈছে ভগ্নাংক কনভার্ট কৰিব দিছে শতাংশ দিয়া আছে ভগ্নাংক কনভার্ট কৰিব দিছে কেনেকৈ কৰিম 45 5 by 6 परसेंटेज तो क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कीजिए 90 का 3 गुण कितना होगा 270 275 और परसेंटेज माने की 1 by 100 इसलिए 100 से डिवाइड हो यार এটা হোক আর ক্যান্সেল করো 25 দিয়ে যদি কাটে এটা পাবো 4 25 দিয়ে যদি কাটে আপনি পাবো কত 8 8 3 11 तो 11 by 11 by क्लियर याते हिट कर और बहुत बेसी कोले दिगदार होगा